नए विधानसभा भवन के निर्माण पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठक आज शिलांग के ताज विवांता में हुई। बैठक में मेघालय विधानसभा अध्यक्ष थॉमस ए संगमा, मुख्यमंत्री कोनराड संगमा, उप मुख्यमंत्रियों प्रेस्टोन टाइनसोंग और स्न्याव भालंग धर और अन्य विधायकों और विभिन्न संबंधित विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। अपने संक्षिप्त विवरण में विधानसभा अध्यक्ष थॉमस ए संगमा ने बताया कि उठाए गए एजेंडे में मुख्य भवन के निर्माण की प्रगति की समीक्षा, दूसरे चरण के निर्माण का प्रस्ताव और सुरक्षा प्रणालियों पर प्रस्तुति शामिल थी। उन्होंने बताया कि एचपीसी, विधानसभा सचिवालय और लाइन विभागों ने दूसरे चरण के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है और प्रस्ताव डोनर मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाएगा। We reviewed the progress of the new assembly building, which is the first phase, and we also presented the proposal for the second phase also. Second phase will include the staff quarters, MLA hostels, and the other health centers, schools, and so on. As I said, basically, number one was the review of the status, present progress of the main assembly building. Then the second item, agenda number 2, was to discuss about the second phase, which we are submitting a proposal to the Government of India through the donor ministry. Then the third agenda item was the presentation of the security systems, providing security solutions to the assembly complex. We had a discussion, but this was the only first presentation, so we'll take it forward. Now, with the approval of the High Powered Committee, Assembly Secretariat, and the concerned departments like PWD and the other like PMCs and the consultants will sit together and again come back. We have decided to, since we are building this, having this assembly building and the complex from the scratch, so we wanted to incorporate the traditional and cultural aesthetics in the interior, especially in the interior and in and around the assembly complex. There are no changes actually, but the principle of coming out with this, proposal for second phase, we also decided, and without compromising on as I said, the cultural traditional aesthetics, we have all agreed in principle that we should have, and also because we have 80 acres of land, but that looks very big, but actually when we put all the infrastructure inside, the space is not enough for us. That's why we have to plan accordingly, and this plan is not for short term. It is going for the next at least 2 or 3 generations in future. I had a discussion with the Government of India and the minister concerned, and they have been very positive, but we will know only after we submit the proposals how to go about it. Now we are only submitting our proposals. Whether the Government of India will actually accept or consider, that is to be seen later on. But we will try our best. Honorable Chief Minister and myself, we will be approaching them personally. Yes, no, the clearing is already done. Now, small, to build up the pillar for the main center dome, so the construction is on. The debris is cleared. I think 90% or 99% clear. केंद्र ने जल शक्ति अभियान के तहत अपने जल संरक्षण प्रयासों का विस्तार करने के लिए आगामी मानसून के मौसम का उपयोग करने का निर्णय लिया है। केंद्रीय नोडल अधिकारियों की 2 सदस्यीय टीम ने जल शक्ति अभियान के तहत कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। कैच द रेन 2023 JSA CTR 2023 और अमृत सरोवर बुधवार को दक्षिण पश्चिम गारो हिल्स जिले में अपनी क्षमता के साथ। संयुक्त सचिव पर्यटन मंत्रालय MR सिनरेन IAS और वैज्ञानिक CHG CGWB जल शक्ति मंत्रालय शासीनलो केंट की टीम दक्षिण पश्चिम गारो हिल्स की 2 दिवसीय यात्रा पर है। देश भर के 150 जिलों में जल संकटग्रस्त जिला जिगजग C&RD ब्लॉक और बेटासिंग C&RD ब्लॉक जिलेवार उच्च जोखिम वाले सरोवरों की सूची में हैं।
जल शक्ति अभियान को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 2019 में पानी की कमी वाले जिलों और ब्लॉकों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए शुरू किया गया था। ग्रामीण क्षेत्रों में हस्तक्षेप करने और जल स्रोत की स्थिरता सुनिश्चित करने और जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे जल जीवन मिशन को भी मजबूत करने के प्रयास में टीम ने समीक्षा बैठक की और JSA CTR 2023 के तहत कार्यों की स्थिति का मूल्यांकन किया। PHE, जल संसाधन, मृदा और जल संरक्षण जैसे विभिन्न लाइन विभागों और अतिरिक्त उपायुक्त RJD शिराने जिले में लागू की जा रही जल संरक्षण परियोजनाओं पर प्रस्तुतियां दी। सिमरन ने विभिन्न लाइन विभागों के अधिकारियों से बात करते हुए जल स्रोतों पर कब्जा करने और उनकी रक्षा करने पर जोर देते हुए कहा कि उठाए गए कदमों और जल संरक्षण के लिए उठाए जाने वाले कदमों का आकलन करने की आवश्यकता है। क्षेत्र में बारिश की कमी पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए कुछ करना होगा, अन्यथा आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि यह विशेष यात्रा एक मानसून पूर्व यात्रा है और वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण परियोजनाओं का पालन करने के लिए मानसून की यात्रा और मानसून के बाद की यात्रा होगी। वर्तमान में अमृत सरोवर परियोजना के अंतर्गत मृदा एवं जल संरक्षण विभाग के अंतर्गत सभी 15 चिन्हित स्थल पूर्ण हो चुके हैं तथा मनरेगा के अंतर्गत 75 चिन्हित स्थल हैं, जिनमें से 43 पूर्ण हो चुके हैं तथा शेष चल रहे हैं। टीम ने बेतासिंग C&RD ब्लॉक के तहत कई साइटों का दौरा किया और निरीक्षण किया और वे गुरुवार को जिगजग C&RD ब्लॉक के तहत साइटों का दौरा करेंगे। टीम ने सिंचाई बांधों, स्प्रिंग चैम्बर निर्माणों के निरीक्षण के अलावा मलचापारा गांव में मृदा और जल संरक्षण विभाग द्वारा किए गए वनीकरण कार्यों का भी निरीक्षण किया। 7 जून की दोपहर दक्षिण गारो हिल्स के रोंगारा क्षेत्र में बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे एक दूरस्थ गारो गांव में अराजकता फैल गई, जब बांग्लादेश सीमा रक्षकों के जवानों ने भारतीय पक्ष को पार किया और रोंगारा के गारो गांव में प्रवेश किया। उन तस्करों की तलाश करने के लिए जो उस दिशा में भाग गए थे। AK असॉल्ट राइफलों और लाठियों से लैस 2 वर्दीधारी BGB कर्मियों को अपने गांव में प्रवेश करते देख ग्रामीण चौंक गए, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सामने सीमा की बाड़ के सामने स्थित है। घटना दोपहर करीब 4 बजे की है। BSF के अनुसार, जिन्हें बांग्लादेश के उनके समकक्षों द्वारा जानकारी दी गई है, BGB तस्करी में शामिल सीमा अपराधियों को पकड़ने के लिए पीछा कर रहे थे, जब वे अनजाने में भारतीय गांव में प्रवेश कर गए। चूंकि गांव बाढ़ के सामने है, BGB कर्मियों को स्पष्ट रूप से यह एहसास नहीं हुआ कि वे पीछा करते हुए भारतीय क्षेत्र में आ गए थे। सीमा उल्लंघन के संबंध में एक फ्लैग मीटिंग आयोजित की गई है और आधिकारिक प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है, लेकिन किसी भी भारतीय नागरिक का उत्पीड़न नहीं हुआ। गारो हिल्स के एक वरिष्ठ BSF अधिकारी ने कहा, जिन्होंने उद्धृत नहीं करने के लिए कहा क्योंकि वह मीडिया से बात करने के लिए अधिकृत नहीं हैं। उन्होंने यह भी बताया कि ज्यादातर घटनाओं में अपराधियों और कुछ सीमावर्ती निवासियों के बीच हमेशा सांठगांठ होती है, जिससे अपराधियों को पकड़ना मुश्किल हो जाता है। लेकिन दूसरे देश से सशस्त्र वर्दीधारी पुरुषों के उनके गांव में प्रवेश करने की उपस्थिति को गारो ग्रामीणों ने हल्के में नहीं लिया। उनकी पूछताछ और उपस्थिति से नाराज ग्रामीण इकट्ठे हुए और BGB कर्मियों को गांव छोड़ने और बांग्लादेश क्षेत्र में वापस जाने के लिए मजबूर किया। उस उत्तेजित माहौल में पीछे हटने वाले बांग्लादेशी गार्डों ने ग्रामीणों को ऐसा करने के खिलाफ चेतावनी देते हुए घटना के वीडियो शॉट लेने के बाद अपने हथियार लहराए। दक्षिण गारो हिल्स के पुलिस अधीक्षक अब्राहम T संगमा ने इस पत्रकार को बताया कि BGB द्वारा ग्रामीणों के उत्पीड़न की रिपोर्ट के बाद पुलिस ने जांच करने के लिए गांव में एक टीम भेजी है। पश्चिमी गारो हिल्स के मैदानी क्षेत्र के एक बलात्कार के आरोपी को इस सप्ताह तुरा में पॉक्सो कोर्ट ने 20 साल की कैद और 20,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। मामला 20 मार्च 2014 को टिकरी किला का है, जब आरोपी रमजान अली ने नाबालिग लड़की के साथ उसके घर में दुष्कर्म किया। बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया और मामला दर्ज किया गया। महिला पुलिस निरीक्षक उषा सिन्हा द्वारा की गई जांच में तुरा में पॉक्सो कोर्ट के एक विशेष न्यायाधीश द्वारा आरोपी को दोषी ठहराया गया। आदेश में कहा गया है कि आरोपी को अदालत द्वारा लगाए गए 20,000 रुपए के जुर्माने का भुगतान करने में विफल रहने पर 1 साल का अतिरिक्त साधारण कारावास भी भुगतना होगा। मेघालय विधानसभा को राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन के त्वरित कार्यान्वयन के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा सम्मानित किया गया है। मेघालय विधानसभा आवेदन को लागू करने वाली देश की 9 विधानसभाओं में से एक है। केंद्रीय संसदीय मामलों के राज्य मंत्री
अर्जुन राम मेघवाल ने 25 मई 2023 को नई दिल्ली में द अशोक के कन्वेंशन हॉल में आयोजित नेवा पर राष्ट्रीय कार्यशाला में मेघालय विधानसभा को पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार डाप बोरलांग द्वारा प्राप्त किया गया था। एम कंप्यूटर प्रोग्रामर और नोडल अधिकारी NEVA मेघालय विधानसभा और लवंडालिंडम उप सचिव संसदीय कार्य विभाग मेघालय सरकार और नोडल अधिकारी नेवा माननीय मुख्यमंत्री कोनराड संगमा और माननीय उप मुख्यमंत्री प्रेस्टन त्यनसोंग और स्न्याप भलंगधर ने नेवा और IT सेल मेघालय विधानसभा की टीम को नेवा के त्वरित कार्यान्वयन में उनकी उत्कृष्ट पहल के लिए बधाई दी। मेघालय विधानसभा के आयुक्त और सचिव डॉक्टर एंड्रयू सिमंस ने राज्य सरकार और मेघालय विधानसभा सचिवालय के प्रयासों को मान्यता देने के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय के प्रति आभार व्यक्त किया। विधानसभा के सदस्यों ने नेवा को मददगार पाया है। मुझे यकीन है कि सदस्य नई तकनीक के अनुकूल होंगे और हम कागजों के उपयोग में कटौती करेंगे, आयुक्त और एम्प सचिव ने कहा। विधानसभा में नेवीए परियोजना के शुभारंभ पर मेघालय विधानसभा के आयुक्त और सचिव डॉक्टर एंड्रयू सिमंस ने बताया कि 27 मार्च 2020 को एक राज्य परियोजना निगरानी इकाई SPMU सह नेवीए कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता की गई थी। संसदीय मामलों के मंत्रालय, नई दिल्ली, मेघालय सरकार और मेघालय विधानसभा के बीच 30 मार्च 2020 को एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए और 20 नवंबर 2020 को ई-गवर्नेंस और सामान्य प्रयोजन के लिए एक हाउस कमेटी का गठन किया गया। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अंततः 21 सितंबर 2020 को राज्य परियोजना निगरानी इकाई द्वारा अनुमोदित किया गया और परियोजना को 18 मार्च 2021 को राज्य में लॉन्च किया गया। आयुक्त एवं सचिव ने बताया कि परियोजना का वित्त पोषण भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा 90-10 के अनुपात में किया जा रहा है। मेघालय विधानसभा के अध्यक्ष थॉमस संगमा ने कांग्रेस विधायक दल के नेता रोनिवी लिंगदोह को मेघालय विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता दी है। साथ ही कांग्रेस विधायक सालिंग संगमा को 8 जून 2023 की पूर्वाह्न से तत्काल प्रभाव से मेघालय विधानसभा में विपक्ष के मुख्य सचेतक के रूप में अध्यक्ष द्वारा मान्यता दी गई है। यह उल्लेख किया जा सकता है कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस TMC दो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टियां विपक्ष के नेता की स्थिति पर जोर दे रही हैं। दोनों पार्टियों ने हाल ही में संपन्न मेघालय विधानसभा चुनाव में 5 से 5 सीटें हासिल की।